Good morning, students. Welcome to Bharat English High School and Junior College. Today we are going to start online lecture. Myself, Alima Zaidi. Now we are going to start our third chapter of IT, computerized accounting with GST. So now, before starting this chapter, we will recap of last chapter, that is chapter number 1, that is HTML, advanced HTML programming. In last lecture, in last chapter, what we will study in HTML, we will learn how to do the program, how to do the coding of creating a web page or websites. Okay, and how to style our web pages with the help of CSS. Okay, and even we are study about SEO, search engine optimization. Lots of things we are studying in chapter 1 and chapter 2. Okay, I hope everyone remember what I teach in all the lectures. So now today we are going to start with कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग विथ जीएसटी. आजकल तो हम जीएसटी का बहुत नाम सुनते हैं कि जीएसटी बढ़ गया है, जीएसटी बढ़ गया, जीएसटी बढ़ गया. ओके, सो आपका जो चैप्टर भी है वो भी टोटली डिपेंड ऑन जीएसटी. So first of all we will start with introduction. Nowadays it is often seen that even small shop or business entities use computer software to maintain their books of account. ओके, अकाउंट्स क्या होता है? अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स का मतलब होता है कि हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, लाइक कुछ लोग आते हैं हमारी शॉप पे परचेस करते हैं, या हम स्टॉक खरीदते हैं. ओके, सो ऑल दिस थिंग्स आर केम इन अकाउंटिंग. मतलब हमें कितना प्रॉफिट हुआ एंड कितना लॉस हुआ, ऑल दिस थिंग्स आर कम इन अकाउंटिंग. आई होप एवरी वन नो वॉट इज़ अकाउंट्स, बिकॉज आप लोग कॉमर्स के ही स्टूडेंट्स हैं. सो हम छोटी छोटी शॉप पर भी जाते हैं तो वहाँ हमें CCTV का डिस्प्ले दिखता है, राइट? छोटी सी राशन की दुकान हो, मेडिकल शॉप हो, कपड़े की शॉप हो, कोई भी शॉप हो, हमें वहाँ पे क्या दिखेगा? CCTV. So if they purchase CCTV cameras to protect their shop, then they also can purchase a computerized accounting system to maintain their account. Okay, uh, let's uh, let's take an example of medical shop. They are just showing the label of medicine to a computer machine. Then it will read that label and display on computer machine. किस पे डिस्प्ले करता है? डिस्प्लेइंग ऑन कंप्यूटर मशीन. ओके, तो ये सारा जो डेटा होता है वो किस में आ जाता है? कंप्यूटर में आ जाता है with the help of computer accounting system. A computerized accounting system is an accounting information system that process the financial transaction and event as per generally accepted accounting principles to proceed to produce report as per user requirements. ओके, अब मेरी रिक्वायरमेंट है व्हेन आई एम गोइंग टू एनी लाइक कोई कपड़े की शॉप पर मैं गई एंड मेरी रिक्वायरमेंट्स है कि मुझे इतने इतने कपड़े चाहिए, तो दे जस्ट noted down all the requirement of mine and then they try their best to give that material or give that product to me with the help of what? That this accounting computerized accounting system. Now modern computerized accounting system are based on concept of database. Okay, now first of all tell me what is database. Okay, as we know, I think so I'm taking an example of database in Flipkart. When we are going to the website of Flipkart, then what we have to do first, we have to register ourselves on Flipkart website. So at the time of registration, what we'll have to fill, we have to fill our name, our contact number, our Gmail, our gender and our address. Okay, this all things are came in where? रजिस्ट्रेशन. तो ये जो रजिस्ट्रेशन का डिटेल हमने फिल किया है वो कहाँ जाता है? वो जो ओनर है, ओनर या फिर कह सकते हैं जो ऐप जो कंपनी संभाल रही है, ओके,
उसके सर्वर पर जाता है, राइट, लाइक एडमिन के पास जाता है। दे कैन सी कि आज के एक दिन पर, लाइक आज 27 की डेट पर कितने यूज़र्स ने रजिस्ट्रेशन किया है, एंड उनका एड्रेस क्या है, उनका नाम, जीमेल, ऑल दिस थिंग्स जो हमने डिटेल्स फिल की है वो सारी उनके पास पहुंच जाएगी। ओके, सो नाउ आवर डेटाबेस is implemented using a database management system. डेटाबेस किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है? यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच इज़ डिफाइंड बाय अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। जो किसको कौन डिफाइन करता है? सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर दैट मैनेज एंड ऑर्गेनाइज डेटा इफेक्टिवली एंड प्रोवाइड एक्सेस टू स्टोर डेटा बाय एप्लीकेशन प्रोग्राम। एंड वो क्या करता है? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वी कैन सेव अवर डेटा। The computerized accounting, the transaction data is stored in well organized database. As I told you कि हमें नेम जो जिस तरीके से हमें अपने वेबसाइट पर दिख रहा है, जिस तरीके से हमें फिल करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन एज, देन कॉन्टैक्ट नंबर, देन जीमेल, उसी सीक्वेंस में वो हमें कहाँ मिलेगा? अपने डेटाबेस में, डेटाबेस के टेबल में मिलेगा। ओके, So, the user operates such a database using a required and desired interface, and also take a desired report by suitable transformation of stored data into information. जो भी हमारा डेटा रहता है वो किस में स्टोर होता है? इंफॉर्मेशन के तौर पे सेव होता है। ओके, नाउ लुक एट हियर, यहाँ पर क्या है? इनपुट डेटा एंड है प्रोसेसिंग एंट्रीज, एंड देन है आउटपुट। अच्छा, इनपुट क्या होता है मैंने बता चुका है। मैं लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर, जो हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं घर में, हम उसका एग्जांपल लेते हैं। व्हाट इज़ इनपुट? आवर कीबोर्ड इज़ इनपुट, राइट? आवर कीबोर्ड इज़ व्हाट? आवर कीबोर्ड इज़ इनपुट। हम इनपुट देते हैं, देन वो प्रोसेस होता है कहाँ? हमारे CPU में वो प्रोसेस होता है, देन हमें क्या देता है? वो आउटपुट देता है। जस्ट लाइक अब मैंने इनपुट दिया मेरा नाम, किस पे? वर्ड पे मैंने लिखा आलिमा जैदी। ओके, बट वो मुझे फ़ौरन डिस्प्ले कर रहा है विद इन अ सेकेंड। मैं यहाँ टाइप कर रही हूँ एंड वो मुझे आउटपुट दे रहा है, बट उतने ही सेकेंड्स में वो प्रोसेस भी होता है कहाँ? CPU में रीड होता है, देन राइट होता है, देन वो डिस्प्ले करता है किस पे? CPU पे। उसी तरह से आपके अकाउंटिंग में भी कुछ स्टेप्स हैं, लाइक इनपुट डेटा दैट इज़ मास्टर्स, देन होता है प्रोसेसिंग एंट्रीज, देन होते हैं आउटपुट रिपोर्ट्स। नाउ लेजर, व्हाट इज़ लेजर? लेजर क्या होता है? एज लाइक कोई कॉन्ट्रैक्टर है कंस्ट्रक्शन का, ओके, एंड एज वी कैन से कि माई कंपनी नेम इज़ ABC, ओके, एंड आई एम गिविंग माई बिल to company XYZ. Understood? My company name is ABC and I am giving my bill for payment to XYZ company. So XYZ company क्या करेगा? वो एक लेजर क्रिएट करेगा, ओके, अपने सिस्टम में वो एक लेजर क्रिएट करेगा, हाँ, और उसको क्या नाम देगा? ABC कंपनी अकाउंटिंग। ओके, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? तो मेरा जो ABC कंपनी क्या हो गया? ये हो गया मेरा लेजर। कहाँ पर हो गया? XYZ कंपनी के अकाउंटिंग में मेरे जो कंपनी का नाम है वो किस में आ गया? लेजर में आ गया। अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड लेजर। नाउ नेक्स्ट इज ग्रुप। ग्रुप का क्या होता है? आई एम टेकिंग जस्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, और भी शायद एक दो होते हैं, आई नॉट रिमेंबर दैट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वाउचर। वाउचर क्या होते हैं? एज वी नो, अगर हम कहीं पर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, लाइक ATM मशीन में हम लोग जाते हैं, वी आर डूइंग माई ट्रांजेक्शन, वी विल डूइंग आवर ट्रांजेक्शन, ओके, देन आफ्टर ट्रांजेक्शन वी गेट द रिसिप्ट ऑफ कितना मैंने विड्रॉ किया है एंड कितना बैलेंस मेरे अकाउंट में है, वो उस रिसिप्ट पे लिखा होता है। सो दिस वी कैन से अ वाउचर। नाउ नेक्स्ट इज
स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम क्या होता है? नाउ जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जांपल, यू आर परचेसिंग सम क्लोथ्स फॉर सम इवेंट, ओके। आपने 5 क्लोथ्स खरीदे हैं एक इवेंट के लिए, ठीक है। सॉरी, एक इवेंट है, यू हैव परचेस 5 क्लोथ। हाँ, इवेंट आपका जस्ट इमेजिन 2 मंथ्स के बाद है एंड आपने बिफोर 2 मंथ्स इतने क्लोथ्स खरीदे हैं, परचेस किए हैं। सो नाउ आप क्या करोगे, 2 यूज़ करता हूँ, देन 3 मैं इवेंट में यूज़ करूँगा। तो जो 3 क्लोथ्स हैं वो आपका क्या हो गया, दिस इज़ योर स्टॉक, अंडरस्टूड। वो आपका क्या किस में आ गया, स्टॉक आइटम में आ गया। वन मोर एग्जांपल, लाइक आपका ये फाइनल एग्ज़ाम आता है या यूनिट टेस्ट भी आता है। अगर यूनिट टेस्ट में आपको 2 चैप्टर आने वाले हैं तो यू आर थिंकिंग 2 डेज़ बाकी है, सॉरी 1 वीक बाकी है, 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं मुझे आईटी के, तो एक अभी पढ़ लेती हूँ या पढ़ लेता हूँ एंड एक मैं बिफोर 1 डे ऑफ एग्ज़ाम, वो भी आपने क्या कर दिया, स्टॉक में रख लिया। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, देन एंड में दे आर क्रिएटिंग अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। ओके, सो आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल ऑफ स्टॉक आइटम। नाउ नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर एज सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, उसमें हम उसको मेजर करते हैं। देन गो डाउन, जहाँ पर हम अपनी स्टॉक को रखते हैं, दिस इज कॉल्ड दैट कॉल गो डाउन। नाउ नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग एंट्रीज। प्रोसेसिंग में क्या आता है, अकाउंटिंग वाउचर, लाइक जो भी मेरे ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स मेरे हुए हैं उसे मैं क्या कहूँगी, अकाउंटिंग वाउचर। देन नेक्स्ट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री वाउचर क्या होता है, मटेरियल विच आई एम टेकिंग एज अ स्टॉक। मैंने वो मटेरियल्स जो एज अ स्टॉक के तौर पे रखा हुआ है, फिर जब उसका टाइम आता है ट्रांजैक्शन का, लाइक बेचने का, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसके थ्रू जो वाउचर निकलता है ट्रांजैक्शन में, उसे हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री वाउचर कहते हैं। नाउ आउटपुट रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा क्या है, रिपोर्ट है। किसका रिपोर्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस का, कि हमारे कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ एंड कितना लॉस। देन बैलेंस शीट, एंड कितना अमाउंट लोगों का आने के लिए बैलेंस है, ओके। ये सारी चीज़ें हैं। देन ट्रायल बैलेंस आता है, देन जीएसटी समरी, ऑल दिस थिंग्स आर केम इन दिस, ओके। इसको क्या कहते हैं, वर्किंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जो हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ये उसका स्टेप्स है। Now another one more is अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोसेस। नंबर 1 इज़ क्रिएशन ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंपनी क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट इज़ क्रिएशन ऑफ लेजर गिविंग अप्रिशिएट ग्रुप, फिर हम क्या क्रिएट करते हैं, लेजर क्रिएट करते हैं। देन सिलेक्शन ऑफ करेक्ट वाउचर, देन हम क्या करते हैं, करेक्ट वाउचर को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ जीएसटी कैलकुलेशन। आफ्टर सिलेक्टिंग करेक्ट वाउचर हम क्या करेंगे, जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट इज़ पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इनटू अकाउंटिंग इन्वेंट्री वाउचर। जीएसटी कैलकुलेशन के बाद हम क्या करेंगे, अपना जो भी ट्रांजेक्शन है वो कहाँ पोस्ट करेंगे, अकाउंटिंग में और इन्वेंट्री वाउचर में। नाउ नेक्स्ट इज रिपोर्ट सच अ बैलेंस शीट, इनकम टैक्स, एक्सपेंडिचर, कैश, बैंक फ्लो स्टेटमेंट एक्सेट्रा जनरेटेड ऑटोमेटिकली। इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्रिंटिंग ऑफ रिपोर्ट। ये किसकी रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट सच एज बैलेंस शीट एंड इनकम टैक्स एंड कैश बैक, जितना भी हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है वो सब की रिपोर्ट आती है। देन वी कैन ऑल्सो प्रिंट दैट रिपोर्ट, अंडरस्टूड। दिस इज़ व्हाट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये हमारा प्रोसेस है एंड दिस इज़ वर्किंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। नाउ नेक्स्ट इज creation company organization. Creating a company involves providing basic information about company whose book of accounts are to be maintained. While creating a company field like name of company, email id, address of company, financial year being from, book beginning from, etc. with admin password has been entered,
In some accounting package, password security measure can be applied to keep the data safe and secure. जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो उसमें how many which details we will need to fill? Company name, email address, email ID, address of company and फाइनेंशियल ईयर उसका बिगिंस कैसा था, लाइक मार्च एंडिंग जो होती है उसमें उसकी कंडीशंस कैसी थी, एंड देन दे आर क्रिएटिंग अ पासवर्ड विद द हेल्प ऑफ एडमिन. ओके, ये हम क्या कर रहे हैं, हमने अगर हमें कंपनी क्रिएट करनी है तो इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है. नाउ लेजर, क्रिएशन ऑफ लेजर. The modern way of managing account called single ledger concept of accounting is being followed. All financial entries are made using ledger. All financial entries are made. जो भी financial entry होती है वो कहाँ होती है, यूजिंग लेजर और अकाउंट हेड के थ्रू होती है. लेजर अकाउंट आर क्रिएटेड टू आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन. लेजर अकाउंट किस लिए क्रिएट किया जाता है, किसी भी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए. ग्रुप्स इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्लासीफाई एंड आइडेंटिफाई अकाउंटिंग हेड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर. जो ग्रुप्स अकाउंटिंग होते हैं, जो ग्रुप्स इन अकाउंटिंग, ग्रुप अकाउंटिंग के अंदर जो सॉफ्टवेयर है हमारा अकाउंटिंग का, उसमें जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो क्लासीफाई होते हैं, आइडेंटिफाई होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, अपने नेचर के हिसाब से. दिस हेल्प्स इन प्रेजेंटिंग समराइज्ड इंफॉर्मेशन. ये किसमें हेल्प करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन समराइज होते हैं उसमें ये हेल्प करते हैं. वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप एंड आई थिंक सो 11th स्टैंडर्ड में यू ऑल आर स्टडी व्हाट इज ग्रुप. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ करेक्ट वाउचर. क्या होता है करेक्ट वाउचर, व्हाट इज करेक्ट वाउचर? A voucher is a pre-numbered accounting document used for recording daily transaction. A voucher is pre-numbered, यानी पहले से जो नंबर्ड होते हैं अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट यूज फॉर, जो डेली ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ होते हैं. एवरी वाउचर मेंटेन इट्स डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड. हर वाउचर क्या मेंटेन करता है, उसके डेबिट एंड क्रेडिट रिकॉर्ड को मेंटेन करता है. दिस आर प्री डिफाइंड वाउचर टाइप फॉर एवरी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन. ये क्या प्री यानी पहले से डिफाइंड रहते हैं वाउचर. ओके, केयर मस्ट बी टेकन टू सिलेक्ट appropriate voucher type, otherwise there might be error in gross net profit and loss. अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वो हमें प्रॉब्लम देगा, एरर देगा, किसमें, ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट एंड लॉस में. अंडरस्टूड. करेक्ट वाउचर में क्या होता है, प्री डिफाइंड नंबर्स होते हैं, अकाउंटिंग नंबर्स होते हैं, तो हमें बहुत ही केयरफुल करना होता है. अगर हमने ज़रा से भी मिस्टेक की तो वो हमें क्या देता है, एरर देता है. सो नाउ नेक्स्ट इज लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड अकाउंटिंग वाउचर टाइप्स एज बिलो. टाइप्स ऑफ वाउचर है एंड उसके यूज़ हैं. फर्स्ट इज रिसिप्ट. रिसिप्ट क्या करता है, अमाउंट रिसिव्ड बाय वे ऑफ कैश. अभी रिसिप्ट में हमें दिखता है कि कितना अमाउंट हमें रिसीव्ड हुआ है बाय कैश. नाउ पेमेंट. पेमेंट मेड बाय कैश. पेमेंट किससे होती है, कैश से होती है. देन सेल्स. कैश एंड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सेल्स का क्या काम होता है, सेल्स टाइप का जो वाउचर होता है वो किस में यूज़ होता है, कैश एंड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नाउ नेक्स्ट इज परचेज. कैश एंड क्रेडिट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज. परचेज किस में यूज़ होता है, कैश एंड क्रेडिट. किसमें, रॉ मटेरियल्स के कैश एंड क्रेडिट्स में यूज़ होता है. देन कॉन्ट्रा. डिपॉजिट और विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ फाउंड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, ट्रांसफ़र ऑफ कैश एंड पेटी कैश. कॉन्ट्रा क्यों यूज़ होता है, डिपॉजिट और विड्रॉ ऑफ कैश. डिपॉजिट एंड मतलब हम डिपॉजिट भी करते हैं एंड विड्रॉल भी करते हैं ऑफ कैश फ्रॉम बैंक और ट्रांजेक्शन फंड. ओके, नाउ नेक्स्ट इज जनरल. क्या है,
rectifying entries or transfer or adjustment entries purchase of fixed assets on credit। इसका यूज़ क्या होता है, ये क्या करता है, रेक्टिफाई करता है एंट्रीज़ को। कौन, जर्नल क्या करता है, हमारी जो भी एंट्रीज हुई है उसको क्या करता है, रेक्टिफाई करता है। और ट्रांसफ़र और एडजस्टमेंट, ट्रांसफ़र करता है एंड एडजस्टमेंट करता है एंट्रीज परचेज ऑफ फिक्स असेट ऑन क्रेडिट। नाउ नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट। ये क्या करता है, रिटर्न ऑल रिटर्न्स ऑफ गुड्स बाय अ कस्टमर। कस्टमर की तरफ से जितने भी गुड्स होते हैं उसको रिटर्न करता है। एंड इट इज़ इशूड व्हेन देयर इज़ अ रिडक्शन इन द प्राइस चार्ज टू अ कस्टमर। एंड ये कब इशू होता है, जब भी हम लोग कोई रिडक्शन करते हैं कस्टमर के लिए चार्जेस, तब यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न डेबिट नोट। रिटर्न ऑफ गुड्स टू अ सप्लायर। ये क्या करता है, ऊपर क्या था, सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट कस्टमर के लिए था, अब ये सप्लायर के लिए है। रिटर्न्स ऑफ गुड्स टू अ सप्लायर, इट इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज़ अ रिडक्शन इन प्राइस गिवन बाय अ सप्लायर। अगर सप्लायर की तरफ से कोई भी रिडक्शन है तो ये यूज़ होता है। अंडरस्टूड। सो नाउ टुडे वी आर स्टॉप ओवर हियर। नाउ नेक्स्ट लेक्चर we will continue with this chapter. Okay, thank you so much for listening me. Hope you have any doubt, then you can ask me. Thank you so much.